Hello, good morning student. Today we are going to start our new point of this lesson, that is hydroelectric energy. Yes, okay, that is a hydraulic power station. Previously we have learned there are different kind of the power station. This we have also generate the electricity there. But we have used their fuel. We have used their fuel. But actually in this kind of this power station we does not use any kind of the fuel here. We have used the direct, yes, that is a natural resources, just without any doing the process, just like this. Means we have do there, we have refer their chemical process, that is a chemical energy. Just but here we can't show any none kind of the chemical process. We have show it's a physically process, physical phenomenon. Means it is one have a recycling. We have again it's a obtain. Yes, Mr. Those kind of the energy resources we have used here, again we have reuse it, again we have obtain it. That is a cyclic process, and it is the one important of this hydraulic power station or hydroelectric energy. Yes, okay, that is it is coming steps towards green energy. Yes, that's a chapter name. It is a coming towards steps green energy because it conserve the environment, it save the environments. Just okay, and it's one useful or the beneficial to just human being as well as the environment also. Yes, and you have learned in previous, when you have saved the environment, actually we have saved ourselves. So we have obtained, we have completed our requirement of energy. Yes, that is a electricity is a very important. Yes, very useful to in our daily life, day to day life. Just okay, and such a requirement we have completed it. Yes, without disturbing the environment. That is a it is a coming steps. Again, I have repeated. It is a coming steps towards green energy. Previous hits we have learned the different kind of there. Just okay, those are somewhat harmful or the disturbing to the climates or the environment or the ecosystem there. So actually, let us we have starts. That is a hydroelectric energy. So we have start here. So come to the point. Here we have also learned one flow chart. Actually, in every power plant, when you have lunch there, that time we gets one flow chart there, and with the help of that flow chart, we get the, yes, that is a simplify the mechanism of that power station. Mechanism of that power station. Here is also we have simplified this how the hydraulic power station or hydroelectric generators how they works. Just okay, it's a very simple technique, that is a naturally one there. So we have construct the dam, a scene form the reservoir. जैसे हम धरन बोलते हैं, है ना, हम नदी के ऊपर धरन बनाएंगे. And when we have construct the dams, yes, and the tap the water, that time they create the lot of pressure, and that is a stored energy. And such a stored energy we have say as a बताइए बेटा, that is a potential energy. And such a potential energy again convert into kinetic energy. And such a principles we have followed here, we have learned. Actually we have used, yes, in this electric generators we have used, that is hydroelectric power station. Yes, in that generating the electricity we have used the such like a technique, that is a potential energy converted to electric energy. That is again we have regained it, that is a physically change. Yes, we have learned here. Actually the water reservoir, yes, in that water reservoir we have reserve the water just with constructing the dam. Just okay, and they that time that stored water they have a potential energy. Yes, okay, in that reservoir water, and it's a conventional source of energy. It is one have a conventional source of the energy stored water है ना बेटा. ये potential energy में देखिए यहाँ पे I have show the indications with the arrow mark, and this is one of conventional source of the energy.
And in hydraulic power plant, the potential energy in water stored in a dam, yes, is converted into kinetic energy. जैसो कि वो kinetic energy को क्या होगी, convert होगी. जैसो कि due to the fast flowing of the water through the, yes, specially constructed channel. हम जब डैम बनवाते हैं तो उसमें एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड क्या होता है, चैनल होता है. यस ओके. एंड थ्रू दैट चैनल, थ्रू दैट पाइप्स, यस ओके, वाटर इज अ फ्लोट्स एट अ सर्टेन height towards the turbines here, and that time they create a kinetic energy, means the potential energy converted to kinetic energy. Yes okay. So, and turbines are put at the bottom of the dams. This okay. And when they put at a bottom at the dam, that is a, we have put a certain height. जैसो कि यहाँ पे certain height create की गई है. certain height के ऊपर से हम पानी का बहाव यहाँ पे बनाते हैं, और वही बहाव टर्बाइंस के ऊपर क्या करते हैं, हम गतिमान करते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के रूप में. और जैसे ही गतिमान होता है तो टर्बाइंस क्या होते हैं, घूमने लगेंगे. तो जैसे कि टर्बाइन तुम्हें तो पता है, टर्बाइंस आर कनेक्टेड टू द जनरेटर. देखिए यहाँ पे जनरेटर. yes. And generator, what is the role of the generator? Generators, they play the role, main role, that is a mechanical energy converted to electric energy, and such like that. This is a simplify the mechanism, means the how the electricity generate with the hydroelectric energy. चलिए. So again we will go to the step wise here. That is a stored water have a potential energy. Again it passes through the well constructed or the specially constructed through that channel. Water we have passed towards the turbine. That time they create the kinetic energy, that is a flowing water. Yes, and due to that flowing water, turbines goes to the rotate here and electricity generate. Yes, okay, that is a mechanical energy converted to electric energy. This is the role of a generator. This is the role of a generator. So we have learned here. Actually, such a systematic representations we have learned. Again, for the studying these mechanism, we have learned here one block diagram of the hydroelectric power station. So come to the next slide, that is a representation of the block diagram. So come to that point, that is a block diagram. Here I have tried to shown on a screen. So I have extend the diagram here, somewhat I have extend here. So after the extending, yes, carefully we have observed on any river we have construct the dam. This is a constructed dam, and when we have construct the dam, we have arranged a specific arrangement there. Yes, we have makes the one specific channels are the construct there, and such a channel, how we have construct the channel, these are very specialized one here. So देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज अ रिवर हियर, दैट इज अ रिवर हैव फ्लोट वाटर, but on that float water rivers, yes, we have construct the dam, yes, having the special channels there we have construct there. Yes okay. And such a dam we have constructed. At that time the waters have a high level, because the dams are constructed on at a certain height, and turbines put at the base of that dam. Just okay, as shown in a block diagram. This is one of schematic representation of the block diagram. So observe कीजिए बेटा यहाँ पे. तो such like that in that block diagram, yes, water, that surface water, that is a middle, that is a submergible water. Again this is one have a bottom. So at the middle point we have construct the channel. देखिए डैम के मिडिल पॉइंट्स में है ना, जैसे कि हम डैम तो बनवाते हैं ऊपर की तरफ, जैसे कि लेकिन वहां पे चैनल जैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो वो चैनल कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहां पे, फ्लोट्स ऑफ दैट पाइप, just those are goes to the turbines who have constructed as at a middle point have a inclining position, have a inclining. देखिए बेटा यहाँ पे कैसी पोजीशन है, यहाँ पे inclining is nothing but we have seen मराठी जैसे हम तिरपी बोलते हैं, and that is one have inclining positions, and inclining position they
टचेस टूवर्ड द टर्बाइंस। वो कहाँ पे चल रहे हैं बेटा, टर्बाइंस के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में हमें सही ढंग से पता चलता है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे ए लेवल पे दैट इज अ सरफेस लेवल वाटर, बी यहाँ पे मिडिल दैट इज अ सबमर्जिंग लेवल ऑफ द वाटर, मिडिल layer of the water, and C is the bottom layer of the water. So we have constructed specially channels toward the middle point of this water. Just okay, and from that middle of that dams, yes, we have constructed the special channels here, and we have floats the water through that channel, that and having inclining position going towards the turbines is at a bottom side. Just okay, and it's create the lot of pressure। देखिए ना बेटा, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो बहाव होता है पानी का, वो कैसा होता है, भाव होता है, लेकिन तुलना में बहाव बी का यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और सी का यहाँ पे बहाव क्या होगा, थोड़ा सा इसे इसे यहाँ पे बहाव होगा, लेकिन यहाँ पे बहाव एक्चुअली है एक ऐसा बेटा, यहाँ पे ए हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो यहाँ पे दे डज नॉट क्रिएट द प्रेशर हियर। तो यहाँ पे जैसे जैसे कि चैनल सी पॉइंट के ऊपर हम जैसे क्रिएट करेंगे तो टरबाइन ज्यादा नहीं घूमेंगे, है ना बेटा। ए के ऊपर हम जैसे क्रिएट करेंगे तो लेकिन ऊपर की तरफ बहाव इतना ज्यादा नहीं होता, जैसे कि हम पानी के नीचे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे बहाव ज्यादा मिलेगा, लेकिन बहाव ज्यादा मिलेगा मिडिल के layer में actually an inclining position, and due to that create the high pressure, that time they show the more kinetic energy। जैसे more kinetic energy होगी तो टरबाइन भी ज्यादा घूमेंगे। और इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी अकाउंट में हमने पढ़ा है जैसे कि ज्यादा टरबाइन के जितने ज्यादा रोटेशन होंगे, टरबाइंस के जितने ज्यादा रोटेशन होंगे, उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज होगा। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गए, है ना, टर्बाइंस आर कनेक्टेड टू जनरेटर, तो यहाँ पे जैसे ई एम आई दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। यस, with the help of this generator, means the generator play the mechanical energy converted into electric energy, and that's why this block gets the more energy due to the more rotations। and when is possible at a point B, जैसे B पॉइंट्स के ऊपर हो तो ये पॉसिबल ज्यादा होगा, A पॉइंट्स के ऊपर हो तो यहाँ पे क्या होगा, yes it does not create a more pressure here, because यहाँ पे वाटर शो द एक वन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, है ना बेटा। ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें बहाव होता है, लेकिन तुलना में जैसे कि मिडिल में जैसे कि बॉटम की तरफ चलते हैं तो बहाव यहाँ पे बढ़ता है ना बेटा। लेकिन यहाँ पे सी के ऊपर यहाँ पे बहाव होता है, लेकिन यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली होगा, और जैसे हॉरिजॉन्टली होगा तो यहाँ पे क्रिएट प्रेशर नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे इंक्लिनिंग होने के कारण यहाँ पे more pressure it create, just okay। and due to that turbine show the more rotation, and when the turbine show the more rotation, yes generator also generate the more electricity there, yes, and it is what have beneficial एक्चुअली। अभी इसी को लेकर हमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए बेटा, अभी ये जो क्वेश्चन है ये कैसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, देखिए बेटा, इट इज वन इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम यू, इट्स ओके, इट्स कम्स इन क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, ये 5 क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये डायग्राम ऐसे ही दी जाएगी और इससे ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बेटा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है, देखिए मैं इस क्वेश्चन के थोड़ा सा इसको मैं एनालाइज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, डायग्राम को देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, with the reference of a point B, potential energy of how much water reservoir in the dam will be converted into kinetic energy। चलिए, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन का, जैसे सिंपल सा है। देखिए, जल विद्युत केंद्र में, है ना, हम यहाँ पे ये जो रिजर्वायर बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो वाटर का जो लेवल है तो उसके लेवल के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट किए वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बनना है, जैसे कि बिंदु बी के ऊपर, ये देखिए डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इस बिंदु बी के ऊपर इसको हम संदर्भ लेकर, इसको हम संदर्भ बिंदु बी को संदर्भ में लेकर, इसको सोचकर, इस इसको हमें अपने माइंड्स में लेकर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बनने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैसी बनती है, ज्यादा बनती है या कम बनती है। इस हाउ मच क्वेश्चन कुछ कैसा पूछा है यहाँ पे, हाउ मच। देखिए बेटा,
with reference to the point B, ये देखिए with reference to the point B, potential energy, how much water reservoir in the dam will be the converted into kinetic energy. तो देखिए yes at B, Mr. potential energy is more here, potential energy is more here because the high pressure, yes, and heavy inclining position, it's okay, and due to that, yes, water show the particular specific property, and according to that property, according to the special feature of the property of water, yes, at a point B of the reservoir, they create a high pressure. Yes, okay, and due to, yes, they show the more kinetic energy. ठीक है, यहाँ पे kinetic energy ज़्यादा होगी, and due to that float of the water is also more there, and that's why, yes, the rotation of the turbine drive turbines is in fast. They show the more rotation. Yes, okay, and have a more rotation. Yes, generating electric capacity is also more there. जस्ट ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट अ पॉइंट बी। बस इस आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, तो बी पॉइंट पे मिलने वाली पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है बेटा, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगेन वी हैव गो टू द सेकंड क्वेश्चन। इन दैट सेकंड क्वेश्चन, yes, I have read here, what will be the effect of electricity generation if the channel taking water turbine start at a point A। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो टरबाइन की तरफ हम जो पानी लेके चल रहे हैं, किस माध्यम से बेटा, देखिए थ्रू द चैनल ए, चैनल चैनल चैनल, ध्यान दीजिए चैनल दिख रहा है बेटा, मैंने यहाँ पे एरो से इंडिकेशन किया है ना। टरबाइन्स के तरफ से हम पानी, टरबाइन की तरफ पानी क्या कर रहा है बेटा, चल रहा है, लेकिन ये चलने वाला जो पानी है, फ्लोट पानी, हम क्या करेंगे, बी से न होते हुए हम ए से पॉइंट आउट करेंगे, ए से लेंगे यहाँ तक। तो क्या होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है इक्वेशन क्या पूछा है, देखिए टरबाइन्स की तरफ चैनल के माध्यम से चलने वाला पानी पानी जैसे हम बी पॉइंट की तरफ से उसको क्या करेंगे, फ्लोट बनाएंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे बनती है, तो उसके ऊपर कुछ परिणाम होगा क्या, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए अगेन आई हैव रिपीट द आंसर हियर, सॉरी क्वेश्चन हियर, व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट, देखिए ए पॉइंट को लेके, ए पॉइंट को लेके इसको थोड़ा सा ध्यान में लीजिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ on electricity generation if the channel taking water turbine starts at a point A. That time, yes, that time they create the, yes, kinetic energy. Obviously, we have get the kinetic energy, but the pressure is a low there. Yes, not, yes, as a comparative to the B. It's okay. They create the pressure, but will not get the more kinetic energy here, and that's why rotations also takes place, but they show the few rotation comparative to the B, and generating electricity is also have a, yes, less there, just okay। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ए पॉइंट की तरफ से हम जैसे पानी का बहाव वो चैनल जैसे टर्बाइंस के ऊपर लेंगे, तो वहां पे रोटेशन तुलना में क्या होगी बेटा, कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बनेगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी, प्रेशराइज नहीं कर पाएगी। ठीक है बेटा, इसीलिए यहाँ पे हमने उसको, ये टर्बाइंस को क्या करते हैं, जैसे कि टर्बाइंस, क्योंकि टर्बाइंस की दिशा और टर्बाइंस यहाँ पे इंक्लिनिंग पोजीशन, जैसे यहाँ पे वो मिल नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां पे एनर्जी भी कैसे मिलेगी, तुलना में कम मिलेगी। ठीक है बेटा, अभी देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इफ द चैनल टेकिंग वाटर टर्बाइन स्टार्ट्स एट अ पॉइंट सी। चलिए तो देखिए मैं इसको ऐसा बताऊंगा, जैसे कि टर्बाइंस की तरफ जैसे पानी हम लेते हैं, है ना, मार्गिका बोलते हैं, मार्गिका यानी कि चैनल्स। यस, अभी सी बिंदु, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है बेटा, पॉइंट सी। यस, हम यहाँ पे अभी कंसिडराइज करेंगे, सी को कंसिडराइज करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है, तो ये कैसी इफेक्ट बताएंगी, वैसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे है, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट में हमने ए को कंसिडराइज किया था, अभी हम सी को कंसिडराइज करेंगे, एंड व्हाट इफेक्ट्स ऑन दी
जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट देयर, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कैसा मिलेगा बेटा, तो यहाँ पे हॉरिजेंटली है, तो यहाँ पे प्रेशर इतना सारा क्रिएट नहीं होगा, टर्बाइंस यहाँ पे उतने सारे रोटेशन नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, तुलना में बहुत ही कम बनेगी। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट यहाँ पे सही है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए, दैट इज एट ए पॉइंट बी, है ना। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे पहला शब्द यूज किया था, यस, व्हेन एनी फ्लोट waters is as river, we have construct the dams and we have specialized the construct the channel, specialized constructed channels, it's okay, towards the turbines. So this is one have a important, it's okay, and belonging to which principle here, that is a hmm, that is the potential energy converted into kinetic energy. Again we have used the water again and again, yes okay, and this is a renewable source, लेकिन इससे पहले वाले वो सोर्स कौन से थे, नॉन रिन्यूएबल, और वो पोल्यूशन बनाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे कोई वैसा कुछ नहीं दिखाई देता है, एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल टू अवर ह्यूमन बीइंग, yes, human welfare, yes, as well as the conserving the environments, it's okay, it does not create any kind of the pollution here, just okay, but here is also have limitation, लेकिन यहाँ भी कुछ हमें limitations मिलते हैं। चलिए, तो एक ऐसे limitations होते हैं, क्योंकि जैसे देखिए बेटा, हम ऐसे कोई भी प्लांट्स या टर्बाइंस चलाते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी लगती थी, यस, वहाँ पे लिमिटेशन थे, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है, ये लिमिटेशन यहाँ पे थोड़े से अलग है, ठीक है। लेकिन उस लिमिटेशन को देखने से पहले हम यहाँ पे इसका, यस, दैट इज इम्पोर्टेंस देखेंगे। यहाँ पे पहले इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस लर्न करने के लिए अगेन वी हैव कम्स टू द नेक्स्ट सब स्लाइड। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जैसे कि जल विद्युत केंद्र कौन से भी तरह से होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी हमें ईंधन यूज नहीं करने पड़ता है, जैसे कि हम फ्यूल की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है, यस, उसको कंबशन करना, उसका ज्वलन करना यहाँ पे नहीं होता है, और जैसे हम कंबशन नहीं करते हैं, ज्वलन नहीं होता है, तो पोल्यूशन होने का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रदूषण नहीं हो पाएगा, यस। अभी जो धरन बनाते हैं, तो धरन बनाने के बाद यहाँ पे इस वन ड्रॉबैक, देखिए यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है, एक पॉजिटिवनेस यहाँ पे मिला कि ईंधन नहीं यूज किया जाता है, पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन ड्रॉबैक क्या है यहाँ पे, इस जो ह्यूमन बीइंग है उनका हमें यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ता है, जैसे उनको स्थानांतरित होना पड़ता है, ठीक है बेटा, उसका पुनर्वसन यहाँ पे करना पड़ता है, और जैसे पुनर्वसन करने के लिए बहुत सारा खर्च भी होता है, यस, एज वेल एज द सम, देखिए बेटा यहाँ पे कुछ जंगल होते हैं, है ना बेटा, या कुछ भू क्षेत्र होता है, जमीन का क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, पानी में चला जाता है, तो एक्चुअली एट दैट टाइम दिस बायोडाइवर्सिटी आल्सो गोज टू द डिस्ट्रॉय देयर, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन एक्चुअली उनकी तुलना में ये थोड़ा सा कम है, हम उसको अगेन वो इम्प्रूव इट, जैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि लैंड एक्यूपाइंग एरियाज, यस, दैट्स इट इज वन हैव अ ड्रॉबैक्स हियर, लेकिन यहाँ पे जो लैंड का एक्यूपाई एरिया है, तो ये पानी में चला जाता है, तो हम दूसरे जो पर्पज के लिए उसको यूज नहीं कर पाते, है ना, और आदमियों का हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पुनर्वसन करना पड़ता है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक है, और स्पेशली वहाँ पे कोई जैसे कि वेल फर्टाइल लैंड होती है, उसमें बहुत सारा हम क्रॉप ले सकते हैं, वो क्रॉप यहाँ पे हम नहीं ले पाएंगे, दैट इज अ ड्रॉबैक्स हियर, बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे डिस्टर्ब होती है। चलिए, तो ऐसे यहाँ पे एक बैड कॉज भी दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली ये जो जल विद्युत केंद्र है, तो पर्यावरण के लिए स्नेह बढ़ाते हैं, है ना, उनकी तरफ फेवर में है ना, दैट इज वन ऑफ फ्रेंडली टू द इकोसिस्टम, दिस ओके, एंड that's why it is a very important compared to our previous lands power plants. Just okay, those are one have a disturbing the environment. Just more disturbing. Here is how we get the somewhat disturbance, but it is a comparative to that it's one have a negligible here. We have again improve it. We have recover it. Yes, okay. They require some more time here, but we have regain it just like this. So in this way, this is a beneficial, and that's why it is a steps toward the
ग्रीन एनर्जी। चलिए तो देखिए, तो इसे यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है, इसमें कोई डाउट है? सो फॉर इट्स क्लियरिफाइंग वी हैव गो टू द वन एनिमेशन इफेक्ट। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? वी हैव गो टू द वन एनिमेशन इफेक्ट। अभी हम यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट में चलेंगे। तो देखिए, इन दैट एनिमेशन इफेक्ट एक स्लाइड यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ये एनिमेशन इफेक्ट में हमें जैसे स्लाइड को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। चलिए, सो दिस इज अ well constructed dam is on the river. Yes, okay, this is a reservoir having with a tunnel or the channel. This is a head pond, again intake. Yes, okay, and this is a turbines at the base of the dam. Yes, okay, those are the rotated with a flow water. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए इसका हम एनिमेशन इफेक्ट देखेंगे। तो इसमें हमें सिंपल, अभी देखिए आई हैव शो द एनिमेशन। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एरो दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं एक क्लिक करता हूँ तो एनिमेशन दिखाई देता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा था ना, ए वाला ए पॉइंट था, ए वाला बी है और ए वाला सी है। तो यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण देखिए बी पॉइंट की तरफ से यहाँ पे पानी का बहाव भी यहाँ पे ज़्यादा बनेगा थ्रू द चैनल। जैसे कि अभी देखिए एरो के द्वारा यहाँ पे चैनल से वाटर फ्लोट होता है, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। चलिए आगे देखिए काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा? दिस turbines goes to the rotate drive the turbines, and turbines are connected to the generator just generate the electricity। here देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर है, एंड थ्रू दैट ट्रांसफार्मर this transmission of the electric current, this that is a grid lines, and such electric current we have pass, we have transmit it is for our different kind of the purpose। चलिए मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करके बताता हूँ। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एनिमेशन दिखाई दे रहा है। देखिए ये देखिए, ठीक है, तो एनिमेशन इफेक्ट यहाँ पे पता चलता है। तो वी हैव लर्न्स द, वी हैव क्लियरिफाई द हाउ द mechanism of the hydroelectric power station। Just okay, so we have learns this animation effect। again we have go to our next slide। चलिए हम वहाँ पे अपने next slide की तरफ चलते हैं। yes, in that next slide actually we have learns here that is advantages and disadvantages। अभी देखिए यहाँ पे हम advantages देखेंगे। तो advantages बोले तो चलिए बेटा क्या होता है advantages बोले तो फायदे, है ना। तो यहाँ पे पहला वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में यहाँ पे बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं, है ना बेटा। तो देखिए एडवांटेजेस में, तो यहाँ पे पहला मिलता है तो जल विद्युत जो केंद्र होते हैं इनमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होता है। तो ईंधन नहीं होता है तो पोल्यूशन होने का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा फायदा क्या बेटा, यहाँ पे जो हम रिजर्वायर बनाते हैं, धरण बनाते हैं, तो यहाँ पे पानी साठा जो किया जाता है तो इसमें हमें बीज निर्मित करना यहाँ पे कैसा बेटा पॉसिबल है ना। जैसे यस इट्स अ वेरी सिंपल वन, ये इजी है। ये दूसरा यहाँ पे बेनिफिट है। चलिए बेटा तीसरा यहाँ पे हमें एडवांटेज मिलेगा। जैसे बीज निर्मित हम करते हैं तो करते समय जैसे धरण में से रिजर्वायर में से जैसे वाटर हम लेते हैं तो वाटर हम क्या कर सकते हैं बेटा, वो उसका यूज करते हैं। फिर यूज करने के बाद वही वाटर जैसे रेन साइकिल के द्वारा हम फिर रेनी डेज में उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसके जो स्टोरेज है वो फिर हम पूरे कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो दैट्स वन ऑफ मीन्स दैट इज वन ऑफ फिजिकल प्रोसेस, रिसाइकलिंग प्रोसेस, एंड दिस इज द बिग एडवांटेजेस। सो देखिए बेटा अभी ये एडवांटेजेस यहाँ पे हमें पढ़ के देख सकते हैं। जैसे कि देखिए बेटा सिंस नो फ्यूल इज बर्न this hydroelectric power station generation there is a no pollution resulting from a combustion of a fuel। yes, another second is if there is a sufficient water storage in the dam is it is a possible to generate electricity as and when necessary। जैसे हमें वाटर साइकिल में हम इसको जैसे कि जैसे जरूरी हो तो उस जरूरी के मुताबिक हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जैसे कि धरण छोटा हो तो इलेक्ट्रिसिटी हम छोटी तादाद में वहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। जैसे धरण बड़ा हो, रिजर्वायर बड़ा हो, दैट इज वन हैव अक्यूमुलेटिंग वाटर acquiring areas। yes, okay, we have
जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स और पर्पस। तो देखिए बेटा ये हमें पढ़कर उसको ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है बेटा, तुम पढ़ सकते हो। अगेन देखिए, अगेन वी हैव गेट सम प्रॉब्लम्स हियर। अभी हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी है ना। लेकिन देखिए बेटा, पहले वाले के मुताबिक इसे उसको कंपेयर करें तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे तुलना में कोई मायने नहीं दिखाता है ना बेटा, बहुत ही सही सही, क्योंकि हम उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन पहले वाले वो रिकवर करने जैसे नहीं थे, क्योंकि वो फॉर लॉन्ग लाइफ के लिए थे। जैसे कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी लर्न की है, तो वहाँ पे इट्स डायरेक्टली इफेक्ट ऑन जीन्स, इट्स ओके, एंड इट इज वेरी bad. That's okay. It is very harmful, hazardous to the human being as well as the every living organism, and it's affect generation to generation. Just okay. It is a long durable effect there. Just चलिए, तो यहाँ पे वैसे इफेक्ट्स नहीं है उसके तुलना में, है ना, इसीलिए तो इसको हमने एक ही शब्द में बताया, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे कौन सी समस्या है। जैसे कि देखिए हम जब धरण बनाते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, बहुत सारा पानी वहाँ पे स्टोरेज बनाते हैं, है ना। और इसी के लिए वहाँ पे जो जमीन, लैंड एक्यूपाइंग एरिया होता है, वो पूरा इट्स ऑक्यूपाई बाय दैट वाटर। ये वाटर वाटर क्या करता है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है ना बेटा। इसीलिए वहाँ पे रहने वाली जो पीपल्स है या कुछ छोटे छोटे वस्ती है या ग्रामीण देहाती भाग है या शहर है कुछ, वो भी उसको हमें क्या करना पड़ता है, उनका इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ता है, उनका पुनर्वसन बनाना पड़ता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे बहुत सारी जैसे कि सुपीक जमीन बोलते हैं हम इसको, है ना बेटा, दैट इज अ फर्टाइल, वेल फर्टाइल लैंड्स। यस, इट्स आल्सो ऑक्यूपाइज इनटू द वाटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे ड्रॉबैक है, जंगल चले जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है, नष्ट होती है, लेकिन उसको हम रिकवर कर सकते हैं कुछ न कुछ तरह से। ठीक है, पूरी तरह से अपने हाथ से तो नहीं चली जाती, ये यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा वाला बेटा, यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, जो वाटर क्या होता है, अक्सर वाटर हैव अ वेल प्रॉपर्टी दैट इज अ इट्स अ फ्लोट, इट्स प्रवाही है बोलते हैं इसको। और ये प्रवाही होने के कारण बहुत सारी सजीव सृष्टि जो होती है उनके ऊपर भी इनका बैड इफेक्ट या असर होता है। तो देखिए इसको भी हमें पढ़कर थोड़ा सा क्लियरिफाई करना है। इसमें कोई डाउट है बेटा? चलिए, अगेन वी हैव गो टू द, यस, दैट इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस इज वन इंफॉर्मेटिव स्लाइड है, अभी यहाँ पे इंफॉर्मेटिव स्लाइड है। चलिए, हर एक पावर स्टेशन पढ़ते समय हमने देखा था ना, मेजर पावर स्टेशन इन इंडिया, एक्चुअली उसी तरह से यहाँ पे हम मेजर हाइड्रोलिक power plant. Yes, okay. Those are established in India's. Yes, and yes, I have shown the map of India, and in that map I have shown the that's positions. That's mm, positions of the establishing states. I have tried to show with the help of this India map. Just okay. Again, there is a table also shown here. In that table is certain places related to their states and showing with their generating electric generating capacity here. ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे पहला है प्लेस, दैट इज अ टेहरी, टेहरी is from a उत्तराखंड, having the capacity that is a 2400 megawatt. इसके बाद टेहरी के बाद कोयना, related to the महाराष्ट्र, having generating capacity is 1960 megawatt. इसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा श्री सेलम from Andhra Pradesh, having electric generating capacity is 1670 megawatt. After then नैप्ता झाकरी, देखिए नाम थोड़ा सा टिपिकल है, नैप्ता झाकरी is from हिमाचल प्रदेश, having electric generating capacity is 1500 megawatt, such like that. So this is one of informative, yes, accounts we have remember it. Yes, it's a very important according to the exam here. So देखिए बेटा, तो यही थोड़ा सा यहाँ पे हमें मैकेनिज्म लर्न करने के लिए मिलता है, एक सिंपल सा है, ठीक है, एंड इट इज अ
It is a very important comparative to other. Yes, we have learned the previous power plants. Yes, comparative to that, it is a beneficial, or it is a um, friendly to the environment. It is a friendly to the environment, and that's why we have say as a it is a towards green energy. So tomorrow we have going to the next power station, which is a drive by the using the wind energy, natural energy, that is a renewable energy. चलिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी से हम यूज करते हैं या मैकेनिज्म होता है, वही हमें आज कैसे बेटा एनवायरनमेंट की दृष्टि से और अपने दृष्टि से फायदे में रहेंगे, इसको हम अभी आने वाले कल के पीरियड में देखेंगे। ठीक है बेटा, सो हैव स्टॉप हियर, थैंक यू।